वेलकम बैक टू NDI हाउस प्रॉपर्टी पे आगे बढ़ते हैं। विल टेक 4 to 5 back-to-back examples just to understand one point, that is unrealized rent. Now before we start the practical, let us go back to the theory portion. Unrealized rent, we had discussed something like kind of bad debts. What is the treatment? It is to be deducted from actual rent subject to condition, bona fide tenancy, tenant vacate the property, reasonable steps for recovery, etc. Then if at all it is recovered in future, if unrealized rent is recovered in future, then what will be the treatment? Treatment will be either it will be taxable or not taxable. That depends upon whether deduction was allowed earlier or not allowed earlier. Correct? याद आ गया. Assessee may be owner, may not be the owner of the property at the time of recovery of unrealized rent. Still it is income from house property and 30% notional deduction is allowed from such recovery. Correct? That was the point of unrealized rent put together. Now friends, interesting thing is like there may be a theory question also. Unrealized rent. Write a note on unrealized rent. What should be the content? Like what is unrealized rent, what is the treatment, that rule number 4 conditions, those 4 conditions. Then if it is recovered, what is the treatment, will it be taxable, not taxable, everything you are supposed to write, and everything is there in our notes also, so don't worry. Correct? Now coming to the practical of that unrealized rent portion only. First we will take C category. सबसे पहले लेते C category का एक question, just to show the treatment of unrealized rent, just to understand what is how it is treated, what is unrealized rent, how it is treated. Correct? तो सबसे पहले आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पे. 19 कैटेगरी C. पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. Now curve spiral, question number 19, make it fast. Ready? Mr. Karan, furnish the following particulars. Particulars के अंदर क्या क्या है? हाउस प्रॉपर्टी दिल्ली में है, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन इज गिवन, फेयर रेंट इज गिवन, एक्चुअल रेंट पर मंथ गिवन, म्यूनिसिपल टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, टेनेंट वैकेट द प्रॉपर्टी ऑन 31st of October, देयर आफ्टर द प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट फॉर 25,000 पर मंथ. अभिलाष कुड नॉट रियलाइज, थोड़ा सा बड़ी बड़ी बुक में छोटी छोटी प्रिंटिंग मिस्टेक, अभिलाष की जगह पे हो जाएगा मिस्टर करण. Okay, Karan could not realize the rent for the month of September and October. Correct. Due to the death of the, अगर death है तो rule 4 conditions are assumed to be satisfied क्योंकि legal step तो possible होंगे नहीं. Correct. You are supposed to calculate what? Net annual value for the assessment year 2021, मतलब previous year 1920. What would be your answer if the unrealized rent is for 1 month instead of 2 months in above situation? Correct. अगर अच्छे से क्वेश्चन समझ ले तो समझ में आया गया कि अक्टूबर तक इट वाज लेट आउट 21,000 पर मंथ, फ्रॉम नवंबर इट इज लेट आउट 25,000 पर मंथ, सो देयर इज नो वैकेंसी एज सच. ड्यूरिंग द ईयर प्रॉपर्टी कभी भी वैकेंट नहीं था, ओनली अनरियलाइज रेंट इज देयर फॉर द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर, क्योंकि अर्लियर टेनेंट का डेथ हो गया है तो सितंबर अक्टूबर 2 महीने का रेंट नहीं मिला. दैट इज ओनली unrealized rent. Okay, in all it is a let out property, and if it is a let out property, how to calculate the income? चलो आ जाते हैं कैलकुलेशन के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 19 नामकरण विधि के साथ शुरू करते हैं. नेम मिस्टर करण, प्रीवियस ईयर 1920, असेसमेंट ईयर 2021, कैटेगरी सी एग्जाम्पल, नामकरण विधि हो गया है. प्रॉपर्टी इज अ लेट आउट प्रॉपर्टी. कैलकुलेशन स्टेप 1, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी और फेयर रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, विच एवर इज हायर. इफ यू सी द हायर अमाउंट इट इज 2,40,000. स्टेप 2, वैल्यू एज पर स्टेप 1 और स्टैंडर्ड रेंट, whichever is lower. If not available, 2,40,000 continue. This becomes your reasonable expected rent.
For step 3, that is RER or AR, whichever is higher, we require AR, actual rent. तो पहले कैलकुलेट करते हैं actual rent. Actual rent from April to कौन से मंथ तक 21,000 वाला रेंट था? That was क्या यार, अप टू अक्टूबर, फिर नवंबर से इट इज 25,000. ओके, देखते हैं. अप्रैल टू अक्टूबर 21,000 फॉर 7 months, that is 147,000. From November onwards to March, 25,000 per month for 5 months, so that is 125,000. So in all actual rent मिलना कितना चाहिए था दोनों का मिला के? ओके, 2,72,000, but there is some unrealized rent. Unrealized rent is for the month of September and October, so that is 21,000 for 2 months. 21,000 वाला रेंट ही नहीं मिला होगा, that is 42,000. Because of this our actual rent is 2,30,000. अनरियलाइज रेंट का ट्रीटमेंट था फिक्स, एक्चुअल रेंट से माइनस ही करना है हमेशा और उसके बाद ही एक्चुअल रेंट को कंपेयर करना है. सो माई एक्चुअल रेंट इज 2,30,000. Now we'll go to step number 3. Step 3, reasonable expected rent or actual rent, whichever is higher. Reasonable expected rent is 2,40,000, actual rent 2,30,000, whichever is higher. Straight away 2,40,000 is your gross annual value, but the question is of NAV. So इसके आगे और कैलकुलेशन करना पड़ेगा. नेट एनुअल वैल्यू इज इक्वल टू ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर. सो GAV 240, म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर देखा था हमने 20,000. सो नेट एनुअल वैल्यू 2,20,000. दिस इज योर फर्स्ट आंसर. चलो इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन है. सेकेंड क्वेश्चन पे जाते हैं. इफ अनरियलाइज रेंट is for 1 month instead of 2 months. ओके, अगर 1 month का होगा तो स्टेप 1, स्टेप 2 उसमें कोई फर्क पड़ेगा? 100% नो. RER विल बी सेम 240. स्टेप 3 एक्चुअल रेंट 272 में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, 272 भी ऐसा ही रहेगा. सिर्फ अनरियलाइज रेंट 2 months के बदले 1 month का हो जाएगा और कुछ बोला नहीं है तो अज्यूम कि वो अक्टूबर का होगा, सितंबर का मिल गया होगा, या तो मिल गया होगा या तो कोई पुराना उसका डिपॉजिट पड़ा होगा उसको एडजस्ट कर दिया होगा. करेक्ट. सो ओनली 1 month अनरियलाइज रेंट अज्यूम टू बी ऑफ अक्टूबर 21,000. सो इन दैट केस एक्चुअल रेंट विल बी 2,72,000 जो था उसमें से 21,000 विच इज अनरियलाइज्ड. That is only for 1 month. So your actual rent is 251 in this case. Now if you compare step 3 directly, step 3 अपना फिर से एक बार, reasonable expected rent और actual rent whichever is higher. Reasonable expected rent 2,40,000 और actual rent 2,51,000 whichever is higher. So GAV 2,51,000. In this case net annual value, that is GAV minus municipal tax paid, that is equal to 2,51,000 minus 20,000, that is equal to 2,31,000. This is your answer number 2. Fine. So the first answer is 2,20,000, second answer is 2,31,000. अब आराम से इसको लिखा जाए.
लिखने के लिए 1 by 1 देखते जाए। चलो 19 कैटेगरी सी लिखना स्टार्ट, धीरे धीरे ऊपर जाता जाएगा। वैसे तो हमने बात की थी कि देख के कभी लिखना नहीं चाहिए, खुद ही लिखना है, फिर भी थोड़े बड़े स्क्रीन में लिखते। लिखने की स्पीड रखना, धीरे धीरे ऊपर जाता जाएगा। Okay, fine. Ready? No, sir. 1 minute, 1 minute, sir. Correct. So this one is what? Treatment of unrealized rent in the very first year. जिस ईयर में unrealized rent हुआ उस ईयर में क्या किया, तो एक्चुअल रेंट से माइनस किया. That's it. अब if at all it is recovered in the subsequent year, if it is recovered in the same previous year, तो अगर same year में recover करेंगे तो there is no question of unrealized rent. If it is recovered in the subsequent year, तो recovery के टाइम पे सोचना पड़ेगा will it be taxable or not taxable. अब उसको समझने के लिए पहले आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे. आराम से 2 बार क्वेश्चन पढ़ो, फिर तीसरी बार हम लोग साथ में पढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 16 कैटेगरी बी. रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. बहुत ही आराम से समझना कि एक्चुअली उसमें हमें फाइंड क्या करना है. रीड द क्वेश्चन फास्ट. पढ़ा? फिर से पढ़ते. मिस्टर अमरजीत,
इन्फॉर्म्स द फॉलोइंग, असेसमेंट ईयर 2021 वो सब तो पता है. फेयर रेंट 1,50,000, property let out 17,500 per month, however 2 months rental income is not realizable, therefore the gross annual value computed accordingly. 2 months का unrealized rent हो गया, GAV उस हिसाब से कैलकुलेट कर लिया. आगे क्या लिखा है? You would like to know the treatment of 35,000 if it is realized in the later year. मतलब कि फ्यूचर में, मतलब कि सब्सिक्वेंट ईयर में अगर रियलाइज किया तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? विल इट बी टैक्सेबल और नॉट टैक्सेबल? अब इसको प्रेजेंटेशन के साथ अच्छे से समझते हैं. I will go broad. नामकरण विधि, नेम, previous year, assessment year, Mr. Amarjeet. Okay, let us talk about previous year 1920 first. Only one information is available regarding RER. So fair rent is your reasonable expected rent, 1,50,000. Actual rent 17,500 per month. 17,500 per month is receivable for the year. मिलना चाहिए था 2,10,000. But there is some unrealized rent. 17,500 नहीं मिला for 2 months. That is 35,000. So because of this, your actual rent is 175,000. सीधे स्टेप 3 के कंपैरिजन पे आ जाते. रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, विच एवर इज हायर. रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट इज 1,50,000 और एक्चुअल रेंट 1,75,000, विच एवर इज हायर 1,75,000. दिस इज योर ग्रॉस एनुअल वैल्यू. ये स्टोरी हुई फर्स्ट ईयर की. This is your gross annual value. Okay. Now let us begin the next year calculation. Question GAV फाइंड करने का नहीं है. क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट ईयर, लेटर ईयर में अगर रिकवर किया, लेट अस चेंज सब्सिक्वेंट ईयर पे चले जाते. Say in the previous year 2021, unrealized rent recovered. How much recovered? कितना रिकवर किया? फुल्ली रिकवर्ड, दैट इज 35,000. 35,000 is recovered. Now the question is, will it be taxable? So it depends. If deduction allowed earlier, then only at the time of recovery it is taxable. अगर पहले डिडक्शन मिला हो तो ही रिकवरी पे टैक्सेबल होगा. अब पहले डिडक्शन मिला है कि नहीं मिला है, तो हमने एक्चुअल रेंट से माइनस कर दिया था 35,000. क्या 35,000 का पूरा डिडक्शन मिल गया है? तो 1,75,000 GAV जो गिना है हमने वो एक्चुअल रेंट के बेस पे ही गिना है. दैट मीन्स के पूरा डिडक्शन मिल चुका है. सो एट द टाइम ऑफ रिकवरी वो टैक्सेबल होगा. लेकिन उसका प्रेजेंटेशन कैसे लेंगे? तो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ. थिंक 1920 फिर से एक बार, प्रीवियस ईयर 1920, योर एक्चुअल रेंट इज 2,10,000 माइनस 35,000, 175. बट वही 35,000 अगर रिकवर हो जाता है नेक्स्ट ईयर में, दैट मीन्स के पर्टेनिंग टू द ईयर 1920, कीप इन माइंड, पर्टेनिंग टू द ईयर 1920 कोई एक्चुअल लॉस नहीं है क्योंकि वो तो रिकवर कर लिया. अगर लॉस नहीं होता तो हमारा GAV कैलकुलेशन क्या होता? अगर लॉस नहीं होता तो हम GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, कितना गिनते? पहले वो कैलकुलेट करेंगे. कितना गिन चुके हैं वो कैलकुलेट तो हमने ऑलरेडी कर लिया है. बाकी का जो गिना नहीं है उतना डिडक्शन हम क्लेम कर चुके हैं, तो एट द टाइम ऑफ रिकवरी वो टैक्सेबल होगा. अगर उससे ज्यादा कुछ है तो टैक्सेबल नहीं होगा. अब उसको समझने के लिए पहले इसका मैं प्रेजेंटेशन लेता हूं. 35,000 will bifurcate. Will bifurcate in two parts. First part is
what amount of deduction was allowed earlier, पहले हमें कितना डिडक्शन मिला है. फॉर दैट recomputation of GAV, recomputation of gross annual value for previous year 1920 as if no unrealized rent. Why as if no unrealized rent? क्योंकि जो अनरियलाइज रेंट था वो तो रिकवर कर लिया है. सो एज इफ नो अनरियलाइज रेंट. अगर अनरियलाइज रेंट नहीं होता तो अपना स्टेप 3 कंपेरिजन क्या करते, RER 1,50,000 होता और एक्चुअल रेंट, तो एक्चुअल रेंट कितना लेते, तो एक्चुअल रेंट 2,10,000 लेते. क्यों? क्योंकि अनरियलाइज रेंट अगर नहीं है तो मेरा एक्चुअल रेंट तो 2,10,000 पूरा मिलना ही चाहिए. सो 210 होता. विच एवर इज हायर we would have considered 2,10,000 as gross annual value. चलो उसमें से less GAV computed earlier. पहले कितना ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं हम, तो पहले हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके 1,75,000. मतलब कि पहले 1,75,000 के हिसाब से टैक्स भर दिया है. ओके, 1,75,000 इसमें से निकाल दिया तो बाकी कितना बचा, तो 35,000. मतलब कि 35,000 ऐसी अमाउंट है जिसके ऊपर पहले टैक्स नहीं भरा. दैट मीन्स के उतना डिडक्शन हमें पहले मिला था. वी वर अलाउड डिडक्शन टू द एक्सटेंट ऑफ 35,000. सो एट द टाइम ऑफ रिकवरी इट विल बी टैक्सेबल. करेक्ट. इसका दूसरा पार्ट लेते हैं. डिडक्शन not allowed earlier. Okay, what amount we have recovered? 35,000. उसमें से less deduction allowed earlier. पहले हमें कितना डिडक्शन मिल चुका है, ये वाला पोर्शन है 35,000. दैट मीन्स कितनी अमाउंट का पहले डिडक्शन नहीं मिला है, तो ऐसा कोई अमाउंट है ही नहीं, इट इज नील. अगर होता तो नॉट टैक्सेबल. करेक्ट. So in this case, in short, 35,000 what you recovered is fully taxable. ऐसी कोई अमाउंट नहीं है जो टैक्सेबल ना हो. करेक्ट. क्यों? क्योंकि पहले 35,000 का हमें पूरा डिडक्शन मिला है. ओके, सो 35,000 इज अलाउड अर्लियर. सो एट द टाइम ऑफ रिकवरी इट इज नॉट टैक्सेबल. ये एक अंडरस्टैंडिंग हुई. रिकवरी के टाइम पे 35,000 अलाउड अर्लियर तो पूरा टैक्सेबल और नील नॉट टैक्सेबल. ये नील नॉट टैक्सेबल वाला जो पोर्शन है उसको समझने के लिए हम दूसरे एक एग्जांपल के ऊपर आएंगे. फिलहाल सिंपल लॉजिक से ये समझ लो कि 1,50,000 आपका RER था. आपका एक्चुअल रेंट फर्स्ट ईयर में आपने 175 गिना था और उसी के हिसाब से टैक्स भरा था. तो फ्यूचर में जितना भी रिकवर करेंगे इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल. क्लियर. नाउ लेट मी ऐड समथिंग. ध्यान से, हाँ, ये अपनी बुक में नहीं है, मैं इसमें एडिशनल क्वेश्चन डाल रहा हूं. इफ से फॉर एग्जाम्पल इन दिस सम फेयर रेंट अगर 2,50,000 होता, 150 के बदले 250 होता, तो क्या करते? अभी कुछ भी कोई भी लिखना मत. अगर ये 250 होता तो RER 250 होता. RER 250 होता तो 175 के साथ कंपेयर करने के बाद आपका ये जो GAV है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ये चेंज होके 250 हो जाता. दैट मीन्स के 175 कमाया है, पॉकेट में 1,75,000 आया, बट यू पेड टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ 2,50,000. दैट मीन्स 75,000 अमाउंट इज सच एन अमाउंट विच इज ऑलरेडी टैक्स्ड अर्लियर.
मतलब कि आपको अनरियलाइज रेंट का डिडक्शन नहीं मिला है, डिडक्शन नॉट अलाउड अर्लियर। ऑलरेडी 75,000 पे ज़्यादा टैक्स भर दिया, तो फ्यूचर में ये जो 35,000 रिकवर करेंगे वो टैक्सेबल नहीं होगा। दैट इज अ सिंपल लॉजिक, वन इनकम कैन नॉट बी टैक्स ट्वाइस, करेक्ट। So in this case, unrealized rent recovered at the time of recovery, it is fully taxable because it was allowed earlier. But had the reasonable expected rent would be 2,50,000, unrealized rent जो recover करेंगे वो कुछ भी taxable नहीं होगा, करेक्ट। सो ये बी कैटेगरी का क्वेश्चन है, आराम से समझ के लिख लो। अभी अब जो मैंने एक्स्ट्रा लगाया था इसमें से वो मैं रिमूव कर देता हूँ। Okay, now writing time. With full screen. See, in the later year we have taken the previous year 2021, 21-22 भी हो सकता है, 22-23 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आई थिंक नामकरण विधि हो गई है, तो इसको थोड़ा ऊपर लेके आ जाते हैं अभी। दिमाग में जो भी डाउट आते हैं अभी दिमाग में ही रखो, इसके बाद वाले क्वेश्चन में वो डाउट सॉल्व हो जाएगा। रेडी? ओ, मेक इट फास्ट। रेडी? डेफिनेटली रेडी, बाय द टाइम तो रेडी हो ही जाना पड़े। ओके,
क्वेश्चन नंबर 16 जितना भी समझ में आया है उसको दिमाग में रखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बाकी सारे डाउट सॉल्व। क्लियर? चलो अब फिर से एक बार, अनरियलाइज रेंट एट द टाइम ऑफ रिकवरी, इफ डिडक्शन अलाउड अर्लियर देन ओनली एट द टाइम ऑफ रिकवरी इट इज टैक्सेबल, इफ डिडक्शन नॉट अलाउड अर्लियर एट द टाइम ऑफ रिकवरी नॉट टैक्सेबल। क्वेश्चन नंबर 16 में देखा 35,000 का पूरा डिडक्शन हमें पहले मिला है तो रिकवरी के टाइम पे टैक्सेबल होगा। क्यों टैक्सेबल होगा? क्योंकि अर्लियर ईयर में जितना कमाया था उसी इनकम पे टैक्स भरा था, तो फ्यूचर में जितना रिकवर करेंगे पूरा टैक्सेबल होगा। दैट इज दिस क्वेश्चन नंबर 16। और इसमें नील नॉट टैक्सेबल वाला जो अमाउंट है, मतलब कि ये जो सेकेंड पार्ट है डिडक्शन नॉट अलाउड अर्लियर वाला नील, उसको अच्छे से समझने के लिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ, कैटेगरी ए। आराम से 2 बार क्वेश्चन पढ़ना, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन इज देयर, वी आर गोइंग टू सॉल्व विद द सिमिलर काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन। करेक्ट? सो क्वेश्चन नंबर 12 कैटेगरी ए, रीडिंग टाइम हाफ मिनट, रीड फास्ट। पढ़ना भाई पढ़ना, एक बार बोला पढ़ने के लिए तो पढ़ना यार। चल, रम्या adopted 5 lakhs being the municipal valuation of bungalow as a gross annual value। म्यूनिसिपल वैल्यूएशन 5 lakhs था, उसी को ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लिया है। क्यों? देखते आगे। Computed income from house property accordingly even though the property was let out 50,000 per month। वैसे तो 50,000 per month का रेंट था, एक्चुअल रेंट। The rent for 3 months was unrealizable, same was reduced from the actual rent since the relevant conditions under Rule 4 have been fulfilled। Rule 4 की कंडीशन बोनाफाइड टेनेंसी, टेनेंट वैकेट प्रॉपर्टी, रीजनेबल स्टेप्स, ये सब कुछ हो चुका है, सारी फॉर्मेलिटीज खत्म हो गई है एंड 5 lakhs was considered as GAV। चलो वो फर्स्ट ईयर का स्टोरी है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। आगे, शी वुड लाइक टू नो द ट्रीटमेंट ऑफ 1,50,000 बीइंग अनरियलाइज्ड रेंट इफ इट इज रियलाइज्ड इन द सब्सिक्वेंट ईयर। अगर वो अनरियलाइज रेंट वाला जो पोर्शन है 1,50,000 सब्सिक्वेंट ईयर में रियलाइज हो जाए तो शी वुड लाइक टू नो द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट मतलब कि टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा। दिस क्वेश्चन साउंड्स सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 16। So let us again calculate for the previous year 1920 first and then we'll move on to the next year, that is subsequent year, that is previous year 2021 का गिनेंगे। करेक्ट? मैनर ऑफ कंप्यूटेशन वगैरह सेम रहेगा, फिर से ध्यान पूरा रखना। ओके, पहले करेंगे एज यूजुअल नामकरण विधि। नेम रम्या 1920 2021। Firstly we are calculating for 1920। Here you are given municipal valuation, no other information, so municipal valuation is your reasonable expected rent rupees 5 lakhs। Actual rent 50,000 per month, so it should have been 6 lakh, but due to unrealized for 3 months 50,000 for 3 months, that comes to 1,50,000, your actual rent happens to be 4,50,000। Directly we'll move on to step 3, reasonable expected rent or actual rent, whichever is higher। Reasonable expected rent 5 lakhs, actual rent always after deducting the portion of unrealized rent, so directly 4,50,000, whichever is higher 5 lakhs to be considered as gross annual value, that is a story for the year 1। Now in the subsequent year if it is recovered, let us change previous year 2021, unrealized rent
recovered. Okay, how much recovered? Fully recovered, 1,50,000 recovered. Again let us have two parts. इसके दो पार्ट कर देते हैं आगे की तरह. Deduction allowed earlier, deduction not allowed earlier. Okay, similar, let us recompute GAV. Recomputed GAV for previous year 1920 as if no unrealized rent. ओके, अनरियलाइज रेंट नहीं होता तो मेरा कंपैरिजन क्या होता? स्टेप 3 RER आई वुड हैव टेकन 5 lakhs एज इट इज. और एक्चुअल रेंट, तो एक्चुअल रेंट में अगर अनरियलाइज रेंट ही नहीं होता तो एक्चुअल रेंट कितना लेते? तो जो एक्चुअल रेंट था पूरा 6 lakhs. अनरियलाइज रेंट इज नॉट देयर, देन एक्चुअल रेंट 6 lakhs. Whichever is higher, we would have considered GAV rupees 6 lakhs less. GAV computed earlier. ऑलरेडी GAV कितना कंप्यूट किया था उस ईयर में? तो 5 lakhs. दैट मीन्स कि 1 lakh इज सच एन अमाउंट जिसका हमें पहले डिडक्शन मिला है. डिडक्शन अलाउड अर्लियर वॉज 1 lakh. सो एट द टाइम ऑफ रिकवरी इट इज टैक्सेबल. पहले डिडक्शन मिला है, डिडक्शन पहले अगर अलाउ हुआ है तो रिकवरी के टाइम पे टैक्सेबल होगा ही. नॉट अलाउड अर्लियर में लेते हैं. व्हाट अमाउंट यू रिकवर्ड इज 1,50,000. उसमें से लेस डिडक्शन विच वॉज अलाउड अर्लियर, इट वॉज ओनली 1 lakh. रिमेंबर, दैट मीन्स 50,000 इज सच एन अमाउंट जिसका हमें पहले डिडक्शन नहीं मिला. अगर पहले डिडक्शन नहीं मिला है 50,000 तो एट द टाइम ऑफ रिकवरी इट इज नॉट टैक्सेबल. करेक्ट, परफेक्ट. नाउ इफ यू कंपेयर, इट इज लाइक दिस. 5 lakhs RER था. 6 lakh एक्चुअल रेंट में से 150 अनरियलाइज रेंट था, 450 आया था. लेकिन हमने GAV 5 lakhs गिना था. दैट मीन्स कमाया था 450, पॉकेट में आया था 4,50,000. बट वी हैव कैलकुलेटेड GAV अकॉर्डिंग टू ₹5 lakhs RER. दैट मीन्स 50,000 पे 50,000 पे ऑलरेडी ज़्यादा टैक्स भर दिया है. ऑलरेडी 50,000 इज द अमाउंट ऑफ इनकम विच इज टैक्स्ड अर्लियर बिकॉज it was not allowed as a deduction earlier. Correct? So at the time of recovery, simple logic says 1,50,000 जो recover किया है उसमें से 50,000 should not be taxed because it is already taxed earlier. क्योंकि हमने already 50,000 higher amount पे टैक्स भर दिया है. So at the time of recovery 1 lakh rupees taxable होगा, 50,000 rupees taxable नहीं होगा. दूसरा सिंपल लॉजिक समझते हैं. हमने गवर्नमेंट को ऐसा बोला कि भैया हमारा लॉस हुआ है 150, सो 6 लाख के बदले 4.5 ही मिले हैं. सो लेट मी पे टैक्स ऑन 4,50,000. बट गवर्नमेंट ने टैक्स हमें 6 लाख के बदले 450 नहीं 5 lakhs पे भरवा दिया. दैट मीन्स कि गवर्नमेंट ने 6 के बदले 5 गिना है. दैट मीन्स के 1 lakh का डिडक्शन दिया है. तो एट द टाइम ऑफ रिकवरी वो 1 lakh ही टैक्सेबल होगा. 150 में से 1 lakh टैक्सेबल होगा, बाकी का 50,000 टैक्सेबल नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि 450 के बदले 5 lakhs पे ऑलरेडी टैक्स भर चुके हैं. दैट मीन्स इन फ्यूचर अप टू द रिकवरी ऑफ 50,000 इन दिस केस, इस केस में 50,000 की रिकवरी तक कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी. 50,000 के ऊपर जो रिकवर करेंगे वही टैक्सेबल होगा. बराबर से समझ लेना. अप टू 50,000 नथिंग विल बी टैक्सेबल. फॉर एग्जाम्पल ये 1,50,000 हमने पूरा ही रिकवर कर लिया इन द लेटर ईयर. अगर मान लो 30,000 ही रिकवर किया होता तो 30,000 विल बी
नॉट टैक्सेबल, क्योंकि 50,000 तो ऑलरेडी ज़्यादा टैक्स भर चुके हैं, तो फ्यूचर में वो 30 पे तो टैक्स भरेंगे नहीं, 50 तक कोई टैक्स नहीं भरेंगे, रादर 50 के ऊपर जो रिकवरी आएगी वही टैक्सेबल होगा। करेक्ट है, क्लियर है। नाउ यू कंपेयर 16 एंड 12 टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 16 में एक बार देखो, नज़र डालो, 175 हमने एक्चुअल रेंट कमाया था, टैक्स भी 175 के हिसाब से भरा था, तो फ्यूचर में 35 रिकवर्ड, इट इज फुल्ली टैक्सेबल, विच इज कैलकुलेटेड लाइक दिस। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या हुआ, 450 कमाया था, फिर भी 5 lakhs पे टैक्स भरा था, 50,000 इज ऑलरेडी टैक्स अर्लियर, रिकवरी के टाइम पे 150 में से 1 लाख टैक्सेबल होगा, 50,000 टैक्सेबल नहीं होगा, इट इज ऑलरेडी टैक्स अर्लियर, बिकॉज टू दैट एक्सटेंट डिडक्शन वॉज नॉट अलाउड अर्लियर। नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। और ये 1 लाख कौन सा आया वो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, यहाँ से ही आया है। करेक्ट, ओके, परफेक्ट, समझ में आ गया, 100% क्लियर। नाउ यू राइट दिस, लिखते लिखते थोड़ा समझना, क्वेश्चन नंबर 16 के साथ कंपेयर करना, दोनों क्वेश्चन एक साथ देख लोगे तो ये पूरा का पूरा दिमाग में सेट हो जाएगा। करेक्ट। नाउ राइटिंग टाइम 3 minutes, टाइम स्टार्ट्स नाउ। नामकरण विधि, नामकरण विधि इज ओवर। थोड़ा सा एनलार्ज कर लेते हैं इसको और धीरे धीरे ऊपर जाएगा, लिखने का स्पीड बढ़ता जाएगा। मेक इट फास्ट। फर्स्ट ईयर ओवर, 2021 पे आ जाओ। क्या पूछ रहे हैं लोग अंदर अंदर? अच्छा, ये केस नहीं है भाई, एज है। हाँ,
ध्यान लिखने में और समझने में रखो भाई, भटका मत दो। रेडी? Perfect. So you must have compared both the examples, question number 16 and 12 back to back, right? 3 सम की अभी तक जो हमने उसमें क्या देखा, तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखा व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज रेंट, फिर 16 में देखा इफ इट इज रिकवर्ड व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट, टैक्सेबल और नॉट टैक्सेबल, और ये नील नॉट टैक्सेबल वाला जो 16 में आया था उसको फर्दर समझने के लिए 12 में देखा कि व्हाट इज दैट एक्चुअली नील नॉट टैक्सेबल की जगह पे इसमें टैक्सेबल। लॉजिक सेम है, वन इनकम शुड नॉट बी टैक्स ट्वाइस, एज सिंपल एज दैट। क्लियर? ओके। सो अभी तक क्या देखा, अनरियलाइज रेंट हुआ तो फर्स्ट ईयर में क्या करेंगे, रिकवर किया तो सब्सिक्वेंट ईयर में टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा। अब मान लो टैक्सेबल होगा, मतलब कि डिडक्शन अलाउड अर्लियर, सो एट द टाइम ऑफ रिकवरी इट इज टैक्सेबल। तो इफ इट इज टैक्सेबल स्टेटमेंट में कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, 2 तरीके उसको एडजस्ट करने के लिए, विल टेक वन ऑफ दैट, करेक्ट। अब उसको अच्छे से समझने के लिए आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 कैटेगरी बी। 14 कैटेगरी बी, रीड वंस, पहले एक बार पढ़ो। Mr. X, owner of house in Agra, particulars, actual rent, municipal valuation, municipal tax total कितना है, paid by Mr. X, paid by tenant, interest on loan taken for renewal of house, renewal purpose का loan है, क्या उसका डिडक्शन मिलेगा, 5 purpose, purchase, construction, repairs, renewal, reconstruction, renewal purpose loan, interest will be allowed as deduction. Unrealized rent allowed in assessment year 17-18 recovered during the year. कितना इंटरेस्टिंग और अच्छा वर्ड लिखा है, allowed in AY 17-18, मतलब कि अनरियलाइज रेंट
17-18 में अलाउ हुआ था, तो एट द टाइम ऑफ रिकवरी उसकी टैक्सेबिलिटी क्या होगी? तो ऑब्वियसली इट इज टैक्सेबल बिकॉज इट वाज अलाउड अर्लियर। आगे के 2 क्वेश्चन में देख लिया, इफ अलाउड अर्लियर इन द प्रीवियस ईयर एट द टाइम ऑफ रिकवरी इट इज टैक्सेबल। सो ये 2000 टैक्सेबल होगा। पहले कैलकुलेशन करेंगे करंट ईयर के नेट एनुअल वैल्यू का, फिर ये 2000 रुपीज जो अनरियलाइज रेंट रिकवर किया है उसमें से भी 30% डिडक्शन मिल सकता है। सो या तो इसको अलग से कैलकुलेट करके ऐड कर दिया जाए, या तो हम अपने स्टेटमेंट में ही उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। विल एडजस्ट इन द स्टेटमेंट इटसेल्फ। सो व्हाट विल बी द पैटर्न ऑफ आवर आंसर इन दिस केस? नामकरण विधि से शुरू करते हैं। नेक्स्ट 14 कैटेगरी बी, नेम मिस्टर एक्स, ब्रांड एम्बेसडर, प्रीवियस ईयर assessment year. Let us calculate for the current year first. Municipal valuation of the property is your reasonable expected rent. Book में देखो एक बार, it is 42. Actual rent 45. So step 3, RER or AR, whichever is higher, 42, 45, whichever is higher, 4500 is your gross annual value. Now computation part. कंपटीशन में अपना स्टेटमेंट लेते पहले, GAV लेस म्यूनिसिपल टैक्स, NAV लेस हम पहले नहीं करेंगे। क्या करेंगे? तो पहले हम ऐड करेंगे। ऐड अनरियलाइज्ड रेंट which is recovered, which was allowed earlier. वो ऐड करने के बाद you can say total NAV because it is deemed income from house property in the current previous year, the year in which it is recovered. फिर उसमें से अपना जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, लेस डिडक्शंस, स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% ऑफ अनरियलाइज रेंट रिकवर करे तो उसमें भी 30% डिडक्शन मिलता है, और एनएवी का भी 30% डिडक्शन तो करना ही है। सो टोटल एनएवी एंड दूसरा डिडक्शन अपना इंटरेस्ट ऑन लोन। चलो ये अपना परफेक्ट फॉर्मेट हो गया। अच्छी एक लकीर जो अगर हो जाए तो कुछ इस तरह, ओके। GAV 45, म्युनिसिपल टैक्स 630 है बट पेड बाय ओनर, सो इसमें पेड बाय मिस्टर एक्स वाला पोर्शन ही आएगा, दैट इज 420। So NAV 4080. Unrealized rent recovered, as it was allowed as a deduction in the earlier previous year, at the time of recovery it is taxable. So 2000 rupees वो taxable हो गया। So my total NAV for the year comes to 6080. 30%, तो 4080 का भी 30% मिलेगा, 2000 का भी 30% मिलेगा, अल्टीमेटली 6080 का 30% डिडक्शन इज अलाउड, दैट इज 1824. Interest on loan, it is given. Loan purpose is for renewal of property, so interest is allowed, that is 150. So in this case your taxable income from house property is 4106. Perfect. This is treatment. Otherwise what you can do, you calculate NAV 4080, 30% डिडक्शन कर दो,
इंटरेस्ट ऑन लोन 150 माइनस कर दो, उसके बाद ऐड करो अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड आफ्टर दैट 30% डिडक्शन, मतलब कि 2000 में से 30% लेस करने के बाद उसका बाकी का अमाउंट ऐड कर दो. अल्टीमेटली टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी इनकम विल बी सेम 4106. करेक्ट. सो प्रेजेंटेशन वाइज इसी फॉर्मेट के अंदर हमने अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड को एडजस्ट कर दिया. अदरवाइज उसको अलग से भी ट्रीट कर सकते हैं. अलग से कैसे ट्रीट कर सकते हो, तो पहले अपना जो कंप्यूटेशन स्टेटमेंट है, जीएबी, म्युनिसिपल टैक्स, एनएवी 30% एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, उसके बाद एड बैक अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड विच वॉज अलाउड एज अ डिडक्शन इन द अर्लियर ईयर. करेक्ट. सो दिस इज अ सिंपल ट्रीटमेंट इन द स्टेटमेंट, मतलब कि अपने इनकम कैलकुलेशन में अनरियलाइज रेंट रिकवरी को कैसे हमें एडजस्ट करना है. करेक्ट है. सो सब मिला के अभी 4 एग्जाम्पल हो गए. फर्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 19 जो देखा, हाउ अनरियलाइज रेंट टू बी ट्रीटेड इन द फर्स्ट ईयर. फिर जो बैक टू बैक 2 क्वेश्चन किए 16 एंड 12, इफ रिकवर्ड व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट, टैक्सेबल और नॉट टैक्सेबल. फिर हमने ये जो क्वेश्चन किया क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या देखा हमने कि इफ रिकवर्ड एंड इफ इट वाज अलाउड अर्लियर, तो उसको स्टेटमेंट में कैसे एडजस्ट करेंगे टू कैलकुलेट द टोटल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. क्लियर. नाउ यू कैन राइट सिंपल एग्जाम्पल. क्वेश्चन नंबर 14 कैटेगरी बी, लिखने का टाइम सब मिला के 3 मिनट. स्टार्ट राइटिंग. नामकरण विधि के साथ. Ready? Yes, sir. Must be ready by the time now. रेडी कंफर्म रेडी. चलो अब एक और क्वेश्चन लेते हैं अनरियलाइज रेंट का. आज का टारगेट अपना 5 क्वेश्चन का है इस लेक्चर के अंदर. लेट अस टेक द 5th वन, द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन, कैटेगरी ए, क्वेश्चन नंबर 17.
आराम से 2 बार पढ़ना ज़रूरत पड़ेगी। कैटेगरी ए, क्वेश्चन नंबर 17, रीड इट ट्वाइस। पहले एक बार पढ़ो आप लोग, फिर दूसरी बार में हम लोग साथ में पढ़ेंगे। रीड इट फास्ट। चलो, राधिका owns a flat since 2016. Let out to a private finance company from the beginning. पहले से let out किया हुआ फ्लैट है, वेरी गुड। Annual value assessed by the municipal corporation 60,000. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने असेस किया हुआ वैल्यू, मतलब कि म्यूनिसिपल वैल्यूएशन इज योर 60,000. प्रॉपर्टी लेट आउट 10,000. 10,000 के आजू बाजू कुछ लिखा नहीं है, बड़ी बड़ी बुक की छोटी छोटी प्रिंटिंग मिस्टेक। 10,000 के बाजू में लिख लो पर मंथ। $10,000 पर मंथ। करेक्ट, 10,000 पर मंथ, April 2016. Interest free rental advance. Interest free rental advance equivalent to 3 months rent was collected. मतलब कि 3 महीने का कुछ एडवांस लेके रखा है। ओके, there is a stipulation in the lease agreement that 25% increase shall be made in the rent in completion of 3 years of tenancy period. ओके, मतलब कि रेंट एग्रीमेंट में ऐसा लिखा है कि 3 इयर्स खत्म हो जाए। 3 इयर्स कब खत्म होंगे? तो अप्रैल 2016 से प्रॉपर्टी लेट आउट थी, तो मार्च 2019 में 3 इयर्स खत्म हो जाएंगे। फ्रॉम अप्रैल 2019 एक्चुअल रेंट विल बी इंक्रीज बाय 25% एज पर दिस लीज एग्रीमेंट। ओके, आगे देखते हैं। कंपनी रैन इनटू फाइनेंशियल क्राइसिस। ओह नो, कंपनी इज लाइक, यू अंडरस्टैंड, DHFL, उसके जैसा कुछ। ओके, रैन इनटू फाइनेंशियल क्राइसिस इन जून 2019. जून 2019 में कंपनी का हालत खराब है, लिक्विडिटी पोजीशन इज डाउन। नाउ नो रेंट कलेक्टेड देयर आफ्टर, मतलब कि जून के बाद रेंट कलेक्ट नहीं कर पाए, दैट इज फ्रॉम जुलाई 2019 ऑनवर्ड्स। जुलाई 19 से कोई रेंट नहीं मिला। ओके, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, नहीं मिला तो रखेंगे थोड़ी, कंपनी को प्रीमाइस से बाहर तो निकालना पड़ेगा ना। सो नोटिस मस्ट हैव बीन गिवन टू द कंपनी, इसमें ऐसा ही कुछ लिखा है, नोटिस गिवन टू एविक्ट द कंपनी एंड अदर स्टेप्स टेकन विच वेयर नॉट फ्रूटफुल। मतलब कि वो रूल 4 की कंडीशंस, प्रॉपर स्टेप्स, रीजनेबल स्टेप फॉर रिकवरी, नॉट फ्रूटफुल। अल्टीमेटली कंपनी हैज वैकेटेड द प्रॉपर्टी ऑन 31 मार्च 20, ऑन द लास्ट डेट ऑफ द प्रीवियस ईयर कंपनी ने प्रॉपर्टी खाली किया है। मतलब कि ड्यूरिंग द ईयर में कोई वैकेंसी नहीं था, ओनली अनरियलाइज रेंट इज देयर, दैट इज फ्रॉम जुलाई 2019 टू मार्च 2020। करेक्ट, ओनली अनरियलाइज रेंट इज देयर इन द करंट प्रीवियस ईयर 1920। फाइन, आराम से फिर से पढ़ लिया एक बार। अब मेन क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है मतलब फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, व्हाट इज टू बी कैलकुलेटेड। वेदर द क्वेश्चन इज टू कैलकुलेट अनरियलाइज रेंट के ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज रेंट के टैक्सेबल के नॉट टैक्सेबल। फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द क्वेश्चन अल्टीमेटली। वो थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, जानबूझ के रखा है जिससे क्वेश्चन फिर से एक बार ढूंढो पढ़ो तो कुछ समझ में आए। ओके, लास्ट में थोड़ा ऐड कर दो, कंप्यूट GAV। सिंपल, कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू। चलो, अब कैलकुलेशन पे आते हैं। ऐसा मत पूछना कि ऐसे प्रिंटिंग मिस्टेक क्यों होती है, होती नहीं है, रखी है सब बाय इंटेंशन। इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, यू नो, बाय इंटेंशन सब कुछ रखा हुआ है। वो क्यों रखा है धीरे धीरे समझ में आ जाएगा।
क्योंकि जब दूसरी बार ये खोल के बैठोगे ना तब तुरंत ध्यान इसके ऊपर जाएगा, याद आएगा कि हाँ सर ने बोला था इसमें कुछ खास चीज़ें हैं, इसी को कैटेगरी ए में इसीलिए रखा है। वो खास चीज़ क्या है? रेंटल एडवांस है, अनरियलाइज रेंट है, वैकेंसी नहीं है, सो मेनी थिंग्स आर देयर। लेट अस कैलकुलेट। नामकरण विधि से शुरुआत। नेम, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। Okay, first we will take the scenario of April 2016. Your actual rent is 10,000 per month. Rental advance equivalent to 3 months rent was collected, that is 30,000. This rental advance is nothing but deposit. This is deposit. Okay. After 3 years, that is from April 2019, actual rent increase 25%, so it comes to 12,500 per month. Correct? Municipal valuation is your reasonable expected rent, that is 60,000. Now let us calculate for previous year 1920. Actual rent increase हो चुका है, so 12,500 के हिसाब से मिलना चाहिए for 12 months. 12 months का कितना मिलना चाहिए था? तो 1,50,000, but less unrealized rent. Unrealized rent is from July 2019 to March 2020. So 12,500 नहीं मिला for 9 months. It comes to 1,12,500. But अगर टेनेंट आपको भाड़ा नहीं देता है तो माफ़ तो नहीं करते उसको, 30,000 रुपीज़ उसका डिपॉजिट पड़ा है, दैट डिपॉजिट वी विल फॉरफिट, एंड इफ यू फॉरफिट द डिपॉजिट इट इज एडजस्टेड अगेंस्ट योर आउटस्टैंडिंग रेंट. रेंट के सामने उसको एडजस्ट कर देंगे. अगर रेंट के सामने डिपॉजिट को एडजस्ट कर देंगे मतलब कि फ्यूचर में डिपॉजिट रिफंड नहीं करेंगे उसको, वो डिपॉजिट हमने रेंट में ही एडजस्ट कर दिया, दैट मीन्स कि अपना लॉस उतना कम हो जाएगा. So from this unrealized rent, actually unrealized rent is not 1,12,500. We will adjust that deposit amount. So less deposit forfeited. Deposit amount 30,000 forfeited. So actual loss comes to 82,500. Actual loss, that is actual unrealized rent, is 82,500 and your actual rent is 67,500. This is your actual rent now. So for the previous in 1920, if we compare step 3 directly, RER, AR whichever is higher, reasonable expected rent 60,000, actual rent 67,500, whichever is higher, 67,500 is gross annual value. Okay. Now remember, इसमें तो क्वेश्चन नहीं है, बट इन फ्यूचर इफ यू रिकवर अनरियलाइज रेंट, अगर फ्यूचर में अनरियलाइज रेंट रिकवर करो तो डिडक्शन अलाउड अर्लियर, पहले कितना डिडक्शन मिला है? तो 1,12,500 का नहीं मिला है,
पहले डिडक्शन कितना मिला है, तो 82,500 का मिला है. सो एट द टाइम ऑफ रिकवरी व्हेन यू आर कंपेयरिंग डिडक्शन अलाउड अर्लियर, डिडक्शन नॉट अलाउड अर्लियर, 82,500 इज द अमाउंट विच वॉज अलाउड एज अ डिडक्शन इन द अर्लियर ईयर. करेक्ट. So this question is basically to adjust that deposit amount and to calculate the actual amount of loss, that is actual amount of unrealized rent. This is category A. फिर से अच्छे से समझ के बाद में लिखने का टाइम सब मिला के 3 मिनट. Let us start writing in full screen. नामकरण विधि पहले कर लो, फिर धीरे धीरे ऊपर जाते हैं. धीरे धीरे ऊपर जाते हैं, लिखते जाते हैं फास्ट फास्ट. ओके ओके. ठीक है.
fine, ready, perfectly understandable. Correct. So now in all 5 एग्जाम्पल्स जल्दी से एक नज़र डाल देते हैं आज के 5 क्रूशियल सम्स के ऊपर. भले सी कैटेगरी से स्टार्ट किया था फिर भी काम का है. ओके, ये है कहानी अब तक. इसमें देखा क्वेश्चन नंबर 19 में हाउ टू ट्रीट अनरियलाइज रेंट. सिर्फ एक्चुअल रेंट से माइनस करने के बाद कंपैरिजन और सिंपल कैलकुलेशन. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 अनरियलाइज रेंट इफ इट इज रिकवर्ड इन द सब्सिक्वेंट ईयर, डिडक्शन अलाउड अर्लियर तो टैक्सेबल, नॉट अलाउड अर्लियर तो नॉट टैक्सेबल. जिसमें हमने देखा था क्रूशियल पॉइंट एक नील नॉट टैक्सेबल वाला. फिर देखा हमने क्वेश्चन नंबर 12 राम्या डिडक्शन अलाउड अर्लियर, नॉट अलाउड अर्लियर. इसमें क्लियर हुआ नॉट अलाउड अर्लियर, वन इनकम कैन नॉट बी टैक्स ट्वाइस. ओके, फिर देखा अनरियलाइज रेंट का रिकवरी के बाद का ट्रीटमेंट, मतलब कि रिकवर होने के बाद स्टेटमेंट में कैसे एडजस्ट करना है. दैट इज देयर इन क्वेश्चन नंबर 14. देन वी हैव सीन द डिपॉजिट. डिपॉजिट अगर होगी तो उसको फॉरफिट करेंगे, उतना अपना अनरियलाइज रेंट का लॉस कम हो जाएगा और एक्चुअल अनरियलाइज रेंट कितना होगा एंड अकॉर्डिंगली इन फ्यूचर इफ एट ऑल रिकवर्ड तो कैसे कंपेयर करेंगे. करेक्ट. सो दैट इज ऑल द एंटायर पैकेज ऑफ अनरियलाइज रेंट. बैक टू बैक 5 क्वेश्चंस. आई होप कि ये पार्ट में पूरे अनरियलाइज रेंट से यूज टू हो चुके हो. ये पूरा एक पैकेज मैंने बना के दे दिया आपको अनरियलाइज रेंट का. डिफरेंट क्वेश्चंस वी हैव कंबाइंड टुगेदर. करेक्ट. दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन. नेक्स्ट टाइम many interesting sums are there, many more interesting points are there. We'll discuss in the next lecture. Till then, stay happy and stay healthy. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.